Hello everyone, I'm Dr. Raman. Today we will discuss about the breeding policies which are used in India or which were used in India for genetic improvement. Okay. Uh, I had classified this whole particular topic into two major components. We'll just mainly concentrate on cattle portion, okay, in today's lecture. In our next class, I'll discuss mainly about the poultry sector and sheep, goat, and other animals. Okay, that what were the breeding plans used in those particular animals. Okay, uh, if we start with our lecture, the livestock policy objectives of India. Okay, what were the objectives? Okay, कोई भी लाइवस्टॉक पॉलिसी बनाने के लिए हमें कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने होते हैं वो क्या है to augment production of milk, egg, chicken, meat, uh, and other animal food and increase availability of animal proteins in human diet. Okay. इन चीज़ों को increase करना ठीक है to encourage livestock production through small holders with low input systems to expand organized dairy through segregation as an organization of cooperative and private sector efforts with the focus on quality and hygienic control, increase production of quality carpet and coarse wool while making efforts for developing fine wool, to enhance participation of women in livestock development programs, to increase the nutritional support and supplementary income to the rural farmers, to encourage conservation of animal biodiversity and protection of indigenous breeds of livestock and poultry while restricting across the breeding of low producing stocks, to promote avenues for export of livestock and livestock products by adopting measures toward support okay, supportive policies as well as hygienic and quality standard consist with the global trade regime, to control and eradicate communicable animal diseases, pests, and to increase the health and overall facilities for optimizing livestock production, to augment food and fodder resources for sustaining livestock and increasing production. Okay. तो ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमेशा हमारे दिमाग में रहे जब भी हमने एक एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया ठीक है इंडिया की ब्रीडिंग पॉलिसी किस तरह की थी उसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं रीओरिएंटेशन ऑफ कैटल एंड बफलो ब्रीडिंग पॉलिसी would be attempted with the area specific approach backed up by appropriate program addressing our concerns for indigenous cattle breeds and drought animal power. A similar approach has been adopted uh, in the national project on cattle and buffalo breeding. Indigenous cattle breeds accepted by common farmers shall be further developed through region specific and breed specific programs. ओके जिस रीजन में या जिस ब्रीड का एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ अच्छा है तो उसी हिसाब से हम इंडिजिनस कैटल को उस हिसाब से हम यूज करें ठीक है breed specific programs aimed at selection in breeding tracts and supply of improved quality germplasm on demand by farmers. Okay, the state shall be directed to specifically delineate the area of native breed of cattle, record their number breed wise and sex wise, and
encourage farmers to conserve them in their home tracts. ठीक है, तो उन एनिमल्स को जो जिस एक एरिया में रहते हैं उनका वो होम ट्रैक्ट है, तो उसी होम ट्रैक्ट में उन एनिमल्स को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, तो वो चीज़। ठीक है, formation of animal association for improvement of indigenous breeds shall be encouraged। ठीक है, तो वो चीज़ है, एंड ब्रीड एसोसिएशंस बनाओ। ठीक है, such associations shall be involved in production of quality male stock, an efficient mechanism for providing disease-free quality breeding bulls and quality semen for artificial insemination will be put in place. Okay, breeding services would be provided at the farmer's doorstep। ठीक है, एक तो एनिमल्स को हम डिजीज फ्री बनाएं और दूसरा जो हाई प्रोड्यूसिंग मेल्स हम वो प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, at the farmer's doorstep। The indigenous breeds of livestock and poultry are essentially the product of long-term natural selection and are better adapted to withstand tropical diseases and perform under the low and medium input। ठीक है, जो हमारे एनिमल्स हैं वो इसी तरह से हैं। ठीक है, कम चीज़ों में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उनको रखना। ठीक है, many of these breeds have useful genes for fast growth, proliferation, and small size। ठीक है, such genes are uh, and breeds shall be identified, conserved, and utilized। हर एक एरिया के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से these animals have adapted slowly, तो उनको हमने किस तरह से कंजर्व करना है, तो ये मेनली इसके अंदर है। ठीक है, जो बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं हम, बोवाइन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रनिंग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल एंड बफलो इन द कंट्री। इनमें जो सबसे पहला जो मेजर तुम्हें याद रखने हैं वो है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। These have been established to provide support to farmers engaged in the production of indigenous and exotic bull calves of Tharparkar, Red Sindhi, Jersey, HF, and the cross red cattle and Surti and Murrah buffaloes। ठीक है, तो इनके लिए ये बने मीन टोटल 7 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, जो कि इन मेन एरियाज में लोकेटेड है। ठीक है, और इनके अंदर ये ब्रीड्स या जर्म प्लाज्म को हमने कंजर्व करके रखा हुआ। ठीक है, these forms these farms are producing high genetic merit pedigreed full pedigreed calves, okay, uh, of indigenous and exotic breed of cattle and important buffalo breeds। ठीक है, तो इन सबको इन्होंने यहाँ पे कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, द सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, इन जो ये फार्म्स हैं ये साथ में एसोसिएट करते हैं स्क्रीन में प्रॉब्लम आई थिंक। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स Almadhi is also participating in associated herd progeny testing programs of the Central Institute for Research on Buffaloes। ठीक है, buffaloes available at the farm are used for testing mating of Murrah bulls, and the semen provide of proven pedigree bulls is used for further genetic improvement। Second is the herd book and central registration scheme with the objective of identifying superior breeding animals
and to encourage the formation of breed societies, the ICR started this herd books in 1941. ठीक है, 1941 के अंदर ये चीज स्टार्ट हुई. कहाँ से स्टार्ट हुई? ठीक है, एक सेंट्रल कन्वेंशन हुई थी रोम के अंदर इन 1936. तो वहां से प्रेरित होके इन्होंने इंडिया के अंदर हर्ड बुक स्टार्ट की. ठीक है, एज पर दिस कन्वेंशन ईच ब्रीड वाज टू हैव हर्ड बुक ऑफ ईच कंट्री. ठीक है, हर एक एनिमल की एक हर्ड बुक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, तो उन्होंने आके यहाँ पे सबसे पहले रेड सिंधी और साहिवाल ब्रीड्स पे इन्होंने हर्ड बुक बनानी शुरू कर दी. ठीक है, later on the later stages they had started adding गिर, कंकरेज, थारपारकर, अंगोल, कंगम. ठीक है, इन ब्रीड्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया. ठीक है, सर्टेन मिनिमम उन्होंने मिल्क यील्ड का क्राइटेरिया रखा सबसे पहले. ठीक, उस क्राइटेरिया को यूज करके इन्होंने हार्ड बुक्स बनाने शुरू कर दी और एनिमल्स को इसके अंदर ऐड या रजिस्टर करना शुरू कर दिया. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एनिमल को ब्रीड स्पेसिफिक कुछ करेक्टर्स के हिसाब से भी उनकी एंट्री इस रजिस्टर्स में रखनी शुरू कर दी. ठीक है, additionally some other requirements like maintenance of records या pedigree वो सब भी अब इंस्पेक्ट करने लग गए. ठीक है, उसकी भी इंस्पेक्शन साथ साथ प्रॉपर करने लग गए. ठीक है, और एनिमल ओनर्स को बोल दिया कि आपको ये चीजें भी मेंटेन करके रखनी है. ठीक है, in 1962-63 the government of India also started the herd book registration centers. ठीक है, ये सेंटर्स बने फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हर्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? वाज टू लोकेट द सुपीरियर जर्मप्लाज्म इन द ब्रीडिंग ट्रैक्ट. ठीक है, जो एनिमल का ब्रीडिंग ट्रैक्ट है तो उसी को लोकेट करके हम उसी के अंदर एनिमल को रखें. ठीक है, तो ये इसका मेन था. और 2004-2005 तक हमने टोटल 11,000 एलाइट काउस और बफलोज को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया था इसके इस herd book scheme के अंडर. The central herd registration encourage breeders to form breeder association. ठीक है, तो उन्होंने breeder association भी बनवाई for undertaking breed improvement programs by using superior bulls. ठीक है, तो उनका यूज करके. ठीक है, तो the primary aim for the central herd registration scheme is to identify elite. ठीक है, is to identify elite germplasm for further improvement. ठीक है, ये इसका सबसे मेन हम बोलते हैं कि एम रहा. द इंडिजिनस ब्रीड्स जो कि हैं गिर, कंकरेज, हरियाणा, ओंगोल ऑफ कैटलिया और मुर्रा, सुरती, जफराबादी, महसाना, ये जो बफलो ब्रीड्स हैं ये सब इस स्कीम के अंडर. ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन हुई. ठीक है, और जो इलाइट काउज या बफलो बुल्स या उनके मेल्स या बफलोज को रखने के लिए ओनर्स को फिर साथ साथ में स्कीम के अंदर इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं. ठीक है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफलो ब्रीडिंग. ठीक है, this is the third, the genetic improvement of buffaloes being long term activity. The government of India has initiated a major program, national project for cattle buffalo breeding, that is NPCBB. It was initiated in 2000. ठीक है, with the aim of the genetic aim क्या था इसका? Genetic upgradation and conservation of important indigenous breeds. ठीक है, जो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स थे, दैट इज टू फर्स्ट वाज टू अरेंज डिलीवरी ऑफ improved artificial insemination service at farmers doorstep. ठीक है, वही. ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए और हाई प्रोड्यूसिंग जो बुल्स हैं या हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन. और दूसरा था टू अंडरटेक द ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनस कैटल एंड बफलो ब्रीड्स एंड टू इम्प्रूव
provide quality breeding inputs in the breeding tract of the important indigenous breed and to prevent the breeds from डिटीरियोरेशन एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो उनको वहां पे रखेंगे। ठीक, द प्रोग्राम नेक्स्ट फोर्थ वाज द प्रोग्राम्स विच वर ऑपरेटेड बाय अदर एजेंसीज। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर है दैट इज भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, BAIF। ठीक है, ये जो है इट इज अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक ट्रस्ट which was founded by late Dr. Munibhai Desai in 1967। ठीक है, that with the aim to promote sustainable livelihood in the rural India। ठीक है, कैटल इम्प्रूवमेंट जो इनका सबसे पहला जो इनिशियल जो इनका काम था, इनका मेन मोटिव था कैटल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और इन्होंने टोटल डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन के किया in 16 states through 9 associated organizations। ठीक है, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है उरली कंचन में और विद द रीजनल स्टेशंस। ठीक है, और क्या किया, दे हैड प्रोवाइडेड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, द सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फॉर्म जो है कि BAIF। ठीक है, मेंटेन्ड एग्जॉटिक फीमेल्स, इन्होंने एग्जॉटिक फीमेल्स को मेंटेन किया and bulls and bull calves of various breeds of cattle and buffalo। ठीक है, और under the procurement bull program। ठीक है, procurement bull program the calves of various ages are being maintained and potential bull mothers have been identified। ठीक है, जो high yielding bulls से उनकी mothers को identify किया गया। ठीक है, फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग वाज ऑनगोइंग एक्टिविटी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का भी इनिशिएट किया और उसको इंटीग्रेट किया विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स थे ये बहुत बेसिक हैं। ठीक है, अभी जो इंडिया के अंदर मेन चल रहे हैं हम थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उस BAIF के अंडर, ठीक है, एक फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम हुआ, Houston Friesian crossbred bulls of ICR coordinated project and number of farmers have been registered। ठीक है, और semen of bulls is distributed from different institutions across the country for evaluation। ठीक है, semen distribute हुआ, progeny performance recording of the first 5 bull batches showed that average milk yield of ठीक है, जो पहले थी 2। ठीक है, तो वो जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई और टोटल इतनी प्रोजेनिस हुई फ्रॉम 103 सायर्स। ठीक है, तो दिस वाज सम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मोबाइल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज जो कि पहले चल रहे थे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है पहला है, फर्स्ट इज नेशनल डेयरी प्लान NDP phase 1। ठीक है, NDP phase 1 it is a central sector scheme। ठीक है, सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, किसने इम्प्लीमेंट की है, implemented by the National Dairy Development Board, that is NDDB, through end implementing agencies। ठीक है, और पीरियड क्या था, 2011-12 से लेके 2018-19। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक जो स्कीम है उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका आउटकम क्या था। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, NDP का जो ऑब्जेक्टिव है इज साइंटिफिकली प्लान मल्टी स्टेट इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसके अंदर
जो ऑब्जेक्टिव थे दैट वाज टू help increase productivity of milk animals and thereby increase milk production to meet the rapid growing demand of milk. ठीक है, सिंपली एनिमल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और जो एनिमल मिल्क, ठीक है, जो मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है दिन ब दिन, उस रिक्वायरमेंट को मीट करना। ठीक। सेकंड, टू हेल्प प्रोवाइड रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद greater access to the organized milk processing sector। तो जो रूरल एरियाज वाले हैं उनको पब्लिक सेक्टर के साथ किस तरह से डील करना है, ठीक है, हमारी मिल्क सोसाइटीज हैं उनके साथ किस तरह से डील करना है, तो वो सब कुछ इसके अंदर था। ठीक है, तो इसके मेजर कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला था प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, पहला कंपोनेंट था प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, और इसके अंदर इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट कैटल बफलो बुल्स एंड पहले उस पर ध्यान दिया, और इम्पोर्ट ऑफ जर्सी एचएफ बुल्स फॉर सीमन प्रोडक्शन। ठीक है, पहला चीज इस चीज पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोजेनी टेस्टिंग की, पेडिग्री सिलेक्शन की, और इम्पोर्ट ऑफ द बुल्स या उसके इक्विवेलेंट एम्ब्रियोज को इम्पोर्ट किया गया। ठीक है, सेकेंड क्या था इसके अंदर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सीमन स्टेशन। ठीक है, सीमन स्टेशन को स्ट्रेंथन किया, स्टार्टिंग न्यू सीमन स्टेशन। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सीमन स्टेशन, ग्रेड ए ग्रेड बी का जो सीमन स्टेशन हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन किया, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे न्यू सीमन स्टेशन की एडिशन की। ठीक है, वो नए सीमन स्टेशन बनाए। थर्ड वाज सेटिंग अप पायलट मॉडल फॉर viable doorstep AI delivery services। ठीक है, तो on based on the standard operating procedures SOPs through the professional service provider including the animal tagging and performance records। ठीक है, तो वो सबको, ठीक है, एक AI सिस्टम के थ्रू, ठीक है, उसको सेट किया। फोर्थ वाज improving nutrition of milk animals to produce milk with their high genetic potential for reduction of methane emission। ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम चलाया और फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। ठीक है, राशन बैलेंसिंग, ठीक है, कि बेटर न्यूट्रिएंट्स जाएं, और फॉडर डेवलपमेंट में फॉडर प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, उस तरह के प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ठीक है, ये था प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड वाज the village based milk procurement system for weighing, testing uh, quality of milk received and making payment to the milk producers। ठीक है, किस तरह से मिल्क की वेइंग करना, टेस्टिंग करना एंड कलेक्शन किस तरह से हुई, करनी है। ठीक है, मिल्क की कूलिंग किस तरह से करनी है, सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और फार्मर्स की ट्रेनिंग। ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लर्निंग। इसके अंदर इन्होंने आईटीसी बेस्ड एमआईसीज की बनाया, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और उन सिस्टम्स को किस तरह से चलाना है। ठीक है, और उस तरह से किस तरह से वी कैन जस्ट अपग्रेड अवर सिस्टम्स, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर का यूज करके। ठीक है, तो लर्निंग और इवेल्युएशन उन सिस्टम्स की। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट एरिया। ठीक है, ये जो नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट था, ये किस एरिया में मेनली हम बोलते हैं कि वर्किंग था या इम्प्लीमेंटेशन कहाँ थी इसकी। टोटल 18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं 90% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन को। ठीक है, और 87% ऑफ द ब्रीडेबल कैटल एंड बफलोज यहाँ पे ही हैं, और 98% ऑफ द फॉडर रिसोर्सेज भी यहीं पे हैं। ठीक है, तो वो जो 18 स्टेट्स थी दैट आर यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरला, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स थे, ठीक है, टोटल 18 स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड की थी, ठीक है। तो इन 18 स्टेट्स में ये प्रॉपरली चल रहा था, और बाकी स्टेट्स में था बट थोड़ा कम था, ठीक है। अब एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, ई ए ई आई एज क्या है, ठीक है। द प्रोजेक्ट बीन इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली थ्रू द एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज थी, सिर्फ ये देखती थी कि काम क्या है, कहाँ ज़रूरत है, और उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी ई आई एस थी वो क्या थी, स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशंस, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियंस, cooperative milk producer unions, cooperative farm of enterprise such as producer companies, state livestock development boards, central cattle breeding farms, ठीक है, central frozen semen production and training institutes, regional stations for forest production and demonstration, registered societies and trusts, ठीक है, सेक्शन 25 कंपनीज जो जो भी सेक्शन 25 के अंदर आती हैं, ठीक है, सब्सिडरीज ऑफ स्टेचुरी बॉडीज, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स या वेटनरी या डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, ठीक है, ये ईआईएस है, ठीक है। तो ये सब मिलके, ठीक है, इनका एक काम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली दे वर्क, ठीक है। अभी एक्टिविटीज क्या है हमारे पास, बुल प्रोडक्शन, सीमन प्रोडक्शन, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, ठीक है, फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, विलेज बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 काम है, और इन पांचों काम के लिए ई आई एज अलग अलग है, ठीक है, जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बुल प्रोडक्शन में हमें सीमन स्टेशन चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जो ग्रेड ए ग्रेड बी वाले जो सीमन स्टेशन है, तो वो एजेंसीज विच आर लिंक्ड विद द सीमन स्टेशंस, वो इस एक्टिविटी को ध्यान रखती हैं, ठीक। सीमन प्रोडक्शन में भी सीमन स्टेशंस वाली, ठीक है, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट्स, ठीक है, तो उनका यूज किया। राशन बैलेंसिंग में मिल्क यूनियंस, फेडरेशंस या प्रोड्यूसर कंपनीज, इनका इनका काम था। फॉडर प्रोडक्शन में मिल्क यूनियंस, फेडरेशन, प्रोड्यूसर कंपनीज, ट्रस्ट्स और रीजनल स्टेशंस फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, तो इन सब ने फॉरेस्ट डेवलपमेंट में काम किया। और जो तुम्हारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम था, उसमें मेनली मिल्क यूनियंस, फेडरेशंस और प्रोड्यूसर कंपनीज ने अपना बीच में इनपुट दिया, और जो हमें आउटपुट मिला दैट वाज प्रोडक्शन ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट कैटल इन बफलो बुल्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, हमने टोटल 2500 हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स प्रोड्यूस किए, इंपोर्ट किए हमने अराउंड 400 एक्सोटिक बुल्स, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए एंड बी ग्रेड सीमन स्टेशंस, ठीक है। पायलट मॉडल्स बनाए हमने फॉर वेरिएबल डोर स्टेप एयर डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। पायलट मॉडल्स बने। राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के अंदर हमने कवरेज ऑफ 2.7 मिलियन मिल्क एनिमल्स इन 40,000 विलेजेस, ठीक है, तो वो हमने किया। फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर प्रोडक्शन ऑफ 7500 टन्स ऑफ सर्टिफाइड एंड ट्रुथफुली लेबल्ड फूड रिसीट्स, ठीक है, तो वो बनाए। और साइलेज किस तरह से बनाना है, ठीक है, तो वो कंजर्वेशन डेमोन्स्ट्रेशंस दी गई। स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, वो किस तरह से किया गया, टोटल 23,800 एडिशनल विलेजेस को कवर किया गया इसके अंदर, और 1.2 मिलियन एडिशनल मिल्क प्रोक्योरमेंट मिल्क प्रोड्यूसर्स इसके अंदर एनरोल किए गए, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, दैट इज NBBVDD, ठीक है।
इसमें क्या है, जो हमारी ऑन गोइंग 4 हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑन गोइंग द स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, तो उनको हमने मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफलो ब्रीडिंग, ठीक है, दैट इज NPCBB, इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम IDDP, strengthening infrastructure for quality and clean milk production SIQ and CMP, and assistance to cooperatives, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे 4 मेजर जो तुम्हारी स्कीम्स थी उनको मर्ज करके हमने बना दिया है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, दैट इज NPBBDD, ठीक है, NPBBDD, ठीक है। This has been done to integrate milk production and dairying activities in a scientific and holistic manner for attaining high level of milk production and productivity to meet the increased demand of milk of the country। मिल्क डिमांड इंक्रीज हो गई है तो उस चीज को हमने किस तरह से कवर अप करना, ठीक है। अब इस NPBBD के अंदर वी हैव 3 मेजर sections, ठीक है, 3 major components, that is national program for bovine breeding, national program for dairy development and राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, NPBB, NPDD और राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, ठीक है। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर bovine ब्रीडिंग में to arrange quality artificial insemination service at farmers doorstep to bring the breedable females under the organized breeding through artificial insemination or natural service using the germplasm of high genetic merit to conserve and develop and proliferate selected indigenous bovine breeds of high socio-economic importance to provide quality breeding inputs in the breeding tracts of important indigenous breeds so as to prevent breeds from deterioration and extinction, ठीक है, वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। जो तुम्हारा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है इसके अंदर to create this and strengthen the infrastructure of production of quality milk, uh, including the cold chain infrastructure linked the farmers to the consumers, ठीक है। किस तरह से प्रोडक्शन सेंटर से लेके सेलिंग सेंटर तक किस तरह से कोल्ड चेन मेंटेन करना है, ठीक है, वो इसके अंडर है। to create and strengthen infrastructure of procurement, processing and marketing of milk and milk products, ठीक है। to create training infrastructure for training of dairy farmers, ठीक है। to strengthen dairy cooperative societies, producers, companies at village level, to increase the milk production by providing technical input services like cattle feed and mineral mixtures, ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड करना। to assist in rehabilitation of potentially viable milk federations and unions, ठीक है। इन मिल्क फेडरेशंस को या मिल्क यूनियंस को किस तरह से हमने रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिजिनस कैटल breeds so as to improve the genetic makeup and increase the stock, ठीक है। हमारे जो इंडिजिनस है उनको इम्प्रूव करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। टू enhance the milk production productivity of indigenous bovines, to upgrade non-descript cattle using allied indigenous breeds like Gir, Sahiwal, Rathi, Deoni, Tharpar and Red Sindhi, तो इनका यूज करके हमें अपने लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट्स को अपग्रेड करना है टू डिस्ट्रीब्यूट डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट पूल्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ फॉर नेचुरल सर्विस, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रोवाइड करनी है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर के ऑब्जेक्टिव्स है। अब एरिया ऑफ कवरेज क्या है, वैसे तो ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में, बट जहाँ पे हम बोलते हैं कि इट विल प्रोवाइड फाइनेंस ज़्यादा उस एरिया में जहाँ पे नेशनल डेयरी प्लान
का फेज 1 नहीं ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। लाइक हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं और जो बाकी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये ज़्यादा सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ठीक है। बाकी जहाँ पे नेशनल डेयरी प्लान आ चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सब्सिडी है वो कम मिलती है, ठीक है। जैसे हम टारगेट की बात करते हैं, टारगेट क्या है, रूरल कैटल बफलो कीपर्स हैं, सारे वही टारगेट है। फंडिंग पैटर्न इसमें क्या है, जो एनपीबीबी है दैट विल प्रोवाइड 100% ग्रांट, ठीक है, ये 100% देता है। एनपीडीडी है, ठीक है, ये भी 100% देता है, ठीक है, बट किस चीज़ के पैसे नहीं देता, ये इंस्टॉलेशन ऑफ मिल्क बल्क मिल्क कूलर्स, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, मिल्क पाउडर प्लांट्स, रिहेबिलिटेशन, मिल्क यूनियंस एंड फेडरेशंस, ठीक है। For first three components, installation of bulk milk coolers, milk processing plants, and uh, milk powder plants. द फंडिंग पैटर्न, जो इनके अंदर फंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पे एनडीपी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एनडीपी आ चुका है, नेशनल डेयरी प्रोग्राम पहले आ चुका है, तो वहाँ पे इट विल जस्ट प्रोवाइड 50% ऑफ द ग्रांट, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, 100% है, जहाँ पे एनडीपी नहीं है वहाँ पे 100% ग्रांट है, बट कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दे विल जस्ट गिव 50% ग्रांट, ठीक है। और इन ये एरियाज हैं फॉर्मल यूनियन फेडरेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दे विल जस्ट गिव 190% तक असिस्टेंस, ठीक है। जो तुम्हारी नॉन एनडीपी स्टेट्स हैं उनके अंदर 75% ग्रांट, ठीक है। और तो इस तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग इन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ, ठीक है, कि कितने उसके अंदर देने हैं पैसे, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, ठीक है, इसके अंदर भी जो हमने ऊपर पढ़ा था दैट आर EIAs, ठीक है, इसके अंदर वी हैव 3 मेन सिस्टम्स, ठीक है, हर एक स्कीम के अंदर, ठीक है, हर सब स्कीम के अंदर वी हैव 3 implementing agencies. First is state implementing agency, that is SIS, ठीक है, and implementing agencies, that is EIAs, and participating implementing agencies, that is PIAs, ठीक है। तो हर एक में अलग अलग है, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो हर एक में यही 3 है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड पार्टिसिपेटिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, सब में, तीनों में ही, ठीक है। अभी क्या है, द कैटल ब्रीडिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट स्टेट्स, हर एक स्टेट में क्या क्या तुम्हारी कैटल ब्रीडिंग पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रीड है दैट इज अंगोल मलवी, इनमें सिलेक्शन ब्रीडिंग चल रही है इन द केस ऑफ अंगोल एंड मलवी, ठीक है। और अंगोल को हम जो अपग्रेड भी कर सकते हैं विद हाई जेनेटिक पोटेंशियल, जो हमारी सिलेक्टेड अंगोल है उससे, ठीक है। और मलवी का भी सेम है, मलवी को हम अपग्रेड कर सकते हैं विद थारपारकर एंड दियोनी, ठीक है। हलीकर के केस में हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं और ग्रेडिंग अप कर सकते हैं ऑफ द नॉन डिस्क्रिप्ट हलीकर्स, ठीक है। जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हमने अपग्रेड करना है विद अंगोल, थारपारकर, देओनी, और क्रॉस ब्रीडिंग करनी है हमने जर्सी और HF के साथ, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट में यही चीज चल रही है। जैसे तुम गुजरात की बात कर रहे हो, इसमें जो 2 मेजर ब्रीड्स हैं दैट इज गिर एंड कंकरेज, इनमें हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग अप कर रहे हैं। जो तुम्हारे नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं उनको हम गिर या कंकरेज के साथ हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और जर्सी और HF के साथ उनको क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हमारे पास एनिमल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा में वी हैव हरियाणा साहिवाल, जिनकी हमने सिर्फ सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई और एनिमल इसके साथ क्रॉस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं उनको हमने ग्रेडिंग अप करनी है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्ट विद हरियाणा साहिवाल थारपारकर, क्रॉस ब्रीडिंग करनी है विद जर्सी
एंड HF, ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। हिमाचल के केस में भी हम नॉन डिस्क्रिप्ट को ग्रेडिंग अप करेंगे विद हरियाणा, रेड सिंधी, और क्रॉस करेंगे विद जर्सी, ठीक है। ऐसे हर स्टेट का है, ठीक है। जस्ट गो विद पंजाब। पंजाब के अंदर लोकल जितनी कैटल है उसको हम ग्रेडिंग अप करेंगे विद साहिवाल एंड हरियाणा, ठीक है। ये हमारा ग्रेडिंग अप प्रोसीजर्स है। और जो क्रॉस ब्रीडिंग करनी है वो हम करेंगे विद HF एंड जर्सी, ठीक है। राजस्थान के केस में नगोरी, मलवी, राठी, इनमें सिर्फ हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिप्ट के केस में अपग्रेडिंग पहला विद हरियाणा, गिर, थारपारकर, राठी, और जो क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे हम विद जर्सी एंड HF, ठीक है। तो ऐसे हर स्टेट में है, तो ये प्रोसीजर हम इनमें कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल विद दिस टुडेज लेक्चर। आई हैड जस्ट collected this material from 2-3 places, ठीक है। तो I'll just try to share that this वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप के अंदर, तो उसको तुम एक बार गो थ्रू हो लेना, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो एज ऑलवेज I'll just give my email ID, तो you can contact me at any time, ठीक है। Thank you so much.